Assalamualaikum. Sorry for the interruption. I was on call with our head. So, yes, can you guys hear me? It was important official call. I had to receive it. Sorry about that. Okay. So we were studying the organs of speech. Okay. When we are talking about articulatory phonetics, what we are saying over there is that कि हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते हैं. तो जब हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा उससे रिलेशन होगा इस तरह का कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं. ठीक है. So here what is written in the first slide is the various organs which are involved in the production of a speech sounds are called speech organs. ठीक है जी. They are also known as vocal organs. ठीक. The study of a speech organ helps to determine the role of each organ in a production of a speech sounds. They include the lungs, the vocal folds, and most importantly, the articulators. सही. तो यहाँ पे क्या है कि when we are talking about the organs of speech या कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि स्पीच या साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं. तो द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड के जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्पीच ऑर्गन्स या वोकल ऑर्गन्स. ठीक है. और why do we study organs of speech? To determine the role of each organ in the production of a speech sound. ठीक है. मतलब कौन सा ऑर्गन जो है हमारा कौन सा साउंड भी प्रोड्यूस करने में मदद करता है और कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करने में कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो हैं हिस्से जो हैं बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मदद देते हैं. ठीक है. तो हमारे पास एक तो पूरा सेट है आर्टिकुलेटर्स का. ठीक है. वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. इसके अलावा वी हैव द लंग्स एंड द वोकल फोल्ड्स. ये दो चीजें जो हैं हमारे पास दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल सेटअप ऑफ अ स्पीच ऑर्गन्स. अंडरस्टैंडिंग. All the sounds we make when we speak are the result of muscles contracting. ठीक है. When the muscles are contracting, ठीक है, the muscles in the chest that we use for breathing produce the flow of air that is needed for almost all speech sounds. ठीक है. Then we have muscles in larynx. Many different modifications in the flow of air from the chest to the mouth. After passing through the larynx, the air goes through what we call the vocal tract, which ends at the mouth and nostrils. We call the part comprising the mouth the oral cavity, and the part that leads to the nostrils the nasal cavity. Okay, and here the air from the lungs escapes into the atmosphere. Okay. So what is happening over in this slide is it says that all sounds that we are making or we are producing are the result of a muscles contracting. ठीक है. muscles जब contract करते हैं तो हम sounds क्या करते हैं we make sound. ठीक है. अब यहाँ पे they are telling us about the procedure. ठीक है. the muscles in the chest that we use for breathing produce the flow of air that is needed for almost all speech sound. ठीक. अब हमारा जो चेस्ट एरिया है हम सांस कैसे लेते हैं कुछ पता है ना. जरा गहरे गहरे सांस लें सारे मिलके. जल्दी करें. बकायदा पूरा लंग्स भर के सांस लें और फिर लंग्स भर के सांस को बाहर करें. ब्रीद इन ब्रीद आउट. क्या फील हो रहा है.
पूरा ऐसे करें, अंदर सांस लें, बिल्कुल लंग्स को भर दें, फिर रोकें थोड़ा अपना सांस और फिर इसको बाहर निकालें। आपने क्या किया? When you're inhaling, you are breathing in. When you're exhaling, you are breathing out. तो आप क्या कर रहे हैं? ये जो आप एयर को अंदर लेके जा रहे हैं अपने लंग्स में, फिर उनको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं? आपके मसल्स के जो है चेस्ट मसल्स हैं और बाकी बॉडी ऑर्गन्स के मसल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्ट हो रहे हैं, फूल रहे हैं, सिमट रहे हैं, ठीक है? फील हो रहा है ना? बकायदा एक गहरा सांस लें और फिर उसको बाहर करें। You can feel it, the movement of this breathing, you can feel it. ये जो हमने क्या किया, हमने एयर फ्लो किया, ठीक है? ये जो सांस अंदर जा रही है, ये जो सांस बाहर आ रही है, ये फ्लो ऑफ एयर हो रहा है, सही? और ये बहुत नीडेड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल स्पीच साउंड्स, ठीक है? Muscles in larynx produces many different modification in the flow of air from the chest to the mouth. अब अगर हम बात करते हैं कि हम अगर सांस ले रहे हैं तो हम सांस कैसे ले रहे हैं? हम बकायदा नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, ठीक है? और हम एक्सेल जब करते हैं तो ज्यादातर माउथ से करते हैं। तो लार्ynx जो है, ये हम आगे आई विल शो यू द पिक्चर विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज। Muscles in larynx produce many different modification in the flow of air from the chest to the mouth. अब क्या हो रहा है? आपके चेस्ट से माउथ की तरफ जो आ रहा है एयर, क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, ठीक है? उसमें जो है मसल्स होते हैं आपके लैरिंक्स में, जो बहुत सारा, ये वाला वर्ड जो है लैरिंक्स, ठीक है जी, ये वाला वर्ड जो है, तो इसके मसल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हमारी फ्लो ऑफ एयर में प्रोड्यूस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। एक सिंपल किसी भी तरीके से दैट वी गोइंग टू स्टडी इन फर्दर स्लाइड्स कि वो किस तरह से उसको मॉडिफाई करता है और किस तरह के कौन सा साउंड जो है हम लोग प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक? After passing through the larynx, the air goes through what we call the vocal tract, ठीक है? अभी क्या हुआ? सांस अंदर चेस्ट से गुजर के माउथ तक आ रही है, ठीक है? मुख्तलिफ अंदाज से वो एयर फ्लो को, हमारा जो लैरिंक्स है उसके मसल्स जो है वो उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, ठीक? जब लैरिंक्स से निकलती है एयर तो वो वोकल ट्रैक्ट पे आती है या वोकल फोल्ड्स पे आती है, ठीक है? ये वो जगह है जहाँ से हम ज्यादातर हमारा जो साउंड है वो सुनने के काबिल वाले हैसियत में आता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। वैसे तो आप अगर किस्म के भी साउंड प्रोड्यूस करें, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये आपको समझ तो नहीं आ रहे, ठीक है? लेकिन जैसे अब मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपसे ये मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, तो ये जो गुफ्तगू जो आपको समझ में आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त जो है हमारा ये जो है वो वोकल ट्रैक्ट का जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो इसमें ज्यादा जो है वो अपना रोल अदा करता है, विच एंड्स एट द माउथ एंड नॉस्ट्रल्स, ठीक है? अब वहां से क्या हुआ? चेस्ट से हमारी एयर निकली, माउथ में आई, और वो नॉस्ट्रल और माउथ से, नॉस्ट्रल कहलाता है ये जो आपके नाक होती है, ये जो आपके नाक के दो सुराख होते हैं, ठीक है? वहां से निकल रही है, हमारे माउथ से निकल रही है और यहाँ पे आके वो खत्म हो गई। अब जब लारिक्स से लेके वो माउथ पे आके खत्म होती है, तब तक के दौरान वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होती रहती है बिकॉज ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से एयर जो है वो मॉडिफाई हो रही है और वो हमारे प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में मदद कर रही है। We call the part comprising the mouth the oral cavity. Oral cavity का कुछ आइडिया है क्या है?
What is the oral cavity? Hurry up, write in chat. What is oral cavity? कुछ idea है? जी, कैविटी क्या होती है? कुछ आइडिया? यस, कैविटी इज अ होल इन अ टीथ, ठीक है। और बाकी जैसे जो भी चीज है, जो भी आपका अनसाइड ऑफ द माउथ है, विच इज ओरल कैविटी, ठीक है जी। इसी तरह से कहते हैं उसकी आंख में जो है वो आंख में कह रही है, उसके दांत में कैविटीज हो गई हैं। तो उसके जब दांत में कैविटीज हो गई हैं तो वो बेसिकली उसके दांत में बेचारे के जो है वो कीड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो कैविटी होती है, कीड़ा नहीं होता बेसिकली। तो हम पढ़े लिखे हो गए तो हम ये नहीं कह सकते, सही। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि वो ओरल कैविटी से गुजरता हुआ नॉस्ट्रल यानी नेजल कैविटी है, जो नाक का हिस्सा होता है, वहां से करके जो है हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये उसका एक फ्लो ऑफ एयर के साथ साथ हाउ द साउंड स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस, उसका थोड़ा सा सफर बताया है इन्होंने, ठीक है। तो जब हम ओरल कैविटी की बात करेंगे तो उसमें हमारे टीथ आ जाएंगे, हमारा इनसाइड ऑफ फुल माउथ आ जाएगा, आपकी टंग भी आ जाएगी, ठीक है। और नेजल कैविटी में जाहिर सी बात है, ये जो आपका अंदर से ही नोज का जो एरिया होगा वो इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई कैन शेयर विद यू कि किसी ने तरबूज काटा है कभी लाइफ में? तरबूज हम जब काटते हैं तो कैसे काटते हैं? कुछ आइडिया, कुछ याद हो आप लोग? ठीक, वेरी गुड, तकरीबन सब ने ही काटा है, ठीक है। और अभी तो रिसेंटली रमजानों में वी वर ऑल मेकिंग थिंग्स विद द तरबूज एंड एवरीथिंग, या। सो हाउ डू वी कट इट? Yeah, we cut it from center. So when we are trying to study these speech organs and these part of the, ये जो हमारा हेड है, कि वहाँ से कहाँ से हमारे जो हैं ये वोकल ट्रैक्ट क्या है, नेजल कैविटी क्या है, या दूसरी चीज़ें जो हैं वो क्या है, तो हम बाकायदा हमारा जो ये हेड है उसको बिल्कुल स्लाइस किया जाता है सेंटर से, और इस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। लाइक लिटरली वो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, उसको कुल्हाड़ी लगी और उसका सर दो टुकड़े हो गया। तो दिस इज हाउ इन अ रियल लाइफ जो है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्टडी दीज स्पीच साउंड, हाउ द ऑर्गन्स बिहेव एंड ऑल दैट, तो इस तरह से स्टडी करते हैं। यस, यस। In order to learn how the sounds of speech are produced, it is necessary to become familiar with the different parts of a vocal tract. These different parts are called articulators, and the study of them is called articulatory phonetics, जो हमने last class में study किया था कि what are the
3 branches of phonetics जो हम study करते हैं. So we will be studying this because we are going to deal with the production of speech and the pronunciation of a speech and all that. So in order to learn how the sounds of speech are produced, it is necessary to become familiar with the different parts of a vocal tract. These different parts are called articulators. ये जो हम study कर रहे हैं different parts जो हम करेंगे study vocal tract के, खुद vocal tract क्या होता है ये भी हम देखेंगे. और इस चीज़ की study को हम क्या कहते हैं, इस इन सब बातों की study को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए. Hello, can you guys hear me? Yes, articulatory phonetics, बिल्कुल हम इसको articulatory phonetics कहते हैं. Where is what is happening? Can you guys hear me?